आप सभी को नमस्कार। आज इस 28वीं बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और संस्थान के सभी सम्मानित सदस्य, एपेक्स कमेटी के सभी मेंबर्स, डब्ल्यूईसी के सभी मेंबर्स और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का आज स्वागत है। और पिछले बुधवार को डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब क्लास लिए थे हार्ट से रिलेटेड, और आज पेरिफेरल न्यूरोपैथी पे आज डॉक्टर खेतान साहब की क्लास होने वाली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी ध्यानपूर्वक उसको सुने, नोट करें। आगे क्लास प्रारंभ हो इसके पूर्व हम चलते हैं प्रयागराज हेडक्वार्टर, जहां से प्रार्थना आयोजित होगी, फिर क्लास प्रारंभ। पीयूष जी। ओम शब्द का पारायण करेंगे और फिर संस्थान की प्रार्थना को करेंगे। शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य
कर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधि। बहुत बहुत धन्यवाद रीता पांडे जी और अंशु अग्रवाल जी आज की प्रार्थना के लिए। और अब हम आमंत्रित करते हैं सीनियर न्यूरोसर्जन और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लेक्चर के लिए। मैं हटा दूं, आप सर इधर से आइए। सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन आप डिस्टर्ब होने वाला नहीं और शक्ति आएगी। नहीं, शक्ति आएगी। Recording in progress. सर आवाज आ रही है? हेलो अनिल जी जी, यू आर ऑडिबल? हाँ यस सर, ऑडिबल सर। हाँ, डॉक्टर प्रकाश केतान साहब हमारे बीच पे हैं। हम उनका हृदय से आप सबकी ओर से स्वागत करते हैं और आभार करते हैं कि वो उन्हें एक और किसी लेक्चर के लिए जाना है, लेकिन पहली प्राथमिकता आप हैं। कृपया मैं उनको अनिल जी उनको आमंत्रित कीजिए। जी, तो आमंत्रित करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक इटियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रकाश केतान साहब। Thank you, Anil. It's my pleasure to deliver a lecture on a very important topic. I wish to congratulate the head of the institution and all of his colleagues to organize such a lecture and given me an opportunity to deliver a lecture on very important topic. Today we are going to discuss peripheral neuropathy. There are two types of the nervous system, central and peripheral. In central nervous system, there are brain and spinal cord, while all the peripheral nerves, apart from spinal cord and brain, is included in peripheral nervous system. So today we will talk about the peripheral nervous system, and rather we will talk about peripheral neuropathy. Just see it. It is a diagrammatic presentation of peripheral nervous system. The cervical enlargement, cervical ganglion is there. Then we got a thoracic ganglion, then number nerves. These all are peripheral nerves. We have 33 pairs of nerves, peripheral nerves, and you just see the structure in the spinal cord. It is very important. There is a clear demarcation in the spinal cord of sensory system and motor system. Just see sensory system and motor system. Just see the structure here. There are clear-cut tracts which are made for message of sensory system and other are for motor system. So this is the basic thing which we have to learn. Just see it. This is the spinal cord, and this is white matter, this is gray matter, this is central canal, this is dorsal root ganglion, and then the spinal nerves, which is a mixed nerve having both motor and sensory part.
And just see the, as we go down, the shape, size of the spinal cord changes. And at the level of L1 or upper border of L2, a spinal cord terminates, and then cauda equina starts. Conus medullaris ends here at the level of L1. In some cases, at the upper border of L2, conus medullaris means a spinal cord which get terminated. While in tethered cord syndrome, sometimes you also seen there is a meningomyelocele in a child, or tethered cord syndrome, or dysmyelomatocele, in which the cord is going up to the level of L5 or lower body of L3. In our childhood, up to 1 year of the age, the cord extend at the level of L3 to L4, but gradually, as your age increases, it gets terminated in the L1 or L2 level. This is a picture of nerves, peripheral nerves. This is brain, and here spinal cord started, and just see the spinal nerves here. Just see it. Just see it. This is the vertebra. Between two vertebra, you just see this is the spinous process, and this is the, if you cut the section of spinal cord here, just see this is the spinal process, this is lamina, this is the body, and this is the spinal cord, and just see it, this is the spinal nerve. This is another anterior view of the spinal cord, which is very beautifully marketed by some arteries and veins on the anterior surface of the spinal cord. Just see it. You can also appreciate dura arachnoid here, and just see layer by layer dissection of the spinal cord. And apart from it, you can see the spinal nerve here also. These are the peripheral nerves. Today, our topic is these peripheral nerves. This is the posterior commissure. I am talking about this posterior white column. This is the posterior white column. This is the origin of all the things related with the peripheral nerves. All the impulses from various parts of the body came here, then from here it is integrated and goes to the spinothalamic tract or other tract to the brain, and then accordingly it comes down. Just see, our focus is today posterior white column here. Just see, this is the spinal nerve. There are so many rootlets here, and they come together in which ventral and sensory roots are also mixed here and make a spinal nerve. And see, this is the all the spinal nerves. Now, you know first order neuron, second order neuron, then third order neuron. In brain, there is a third order neuron. So today we are talking about first order neuron or peripheral nerve. You just see, this is the first order neuron, then we get a second order neuron, and lastly we get a third order neuron in post central gyrus. Rolandic fissure is there in brain. In Rolandic fissure, anterior part anterior to the Rolandic fissure, about 1 centimeter strip, each motor area, and then we have a sensory area. First, second, third, fourth. First, just this is first order neuron. First order neuron, dorsal, all the peripheral nerves get and united and make a first order neuron. From first order neuron, it makes a different tract like a spinothalamic tract, corticospinal tract. There are lots of tracts in the
spinal cord, motor tract and sensory tract. And in all the tracts, the order of neurons are same. The neuron prior to dorsal root ganglion is first order neuron. Then you see here second order neuron before, and then the third order neuron. Just see the in medulla there is a decussation of the tract here. Just see. This is this. Just see the ascending and descending tracts. As I have told you, the impulses which carried from peripheral part of the body, it is ascended upward to the brain through the first, second, and third order neuron, and these are the ascending tracts: lateral spinal, anterospinothalamic, fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, dorsal or posterior spinocerebellar tract, ventral anterior spinocerebellar tract. These are the very important tract in aspect of the cerebellum, and these are the pyramidal or corticospinal. These are the motor tract, descending tract. Apart from the some reticulospinal tract, olivospinal tract, tectospinal, these all tracts, extrapyramidal tracts, are basically related with your conscious level and all the other activities, other motor activities. A structure of the showing, this is the, just we are coloring in a different color to show you where are the tracts. This is the important area: fasciculus cuneatus and gracilis. This is the sensory area. Now see the peripheral nerve. Peripheral nerve, as you've seen, they are the ventral root and dorsal root from the get together and make the spinal nerves. Now peripheral nerve, these are divided into three parts, as you beautifully just see it: sensory part, motor part, and autonomic part. It is a mixed kind of nerve. It is not a pure motor nerve or pure sensory nerve. The nerves are three categories: pure motor, either pure motor, pure sensory, or a mixed nerve. So all the peripheral nerves are always mixed nerves. While in cranial nerves, there are some motor nerves, some sensory nerve, and some mixed nerve. There are 12 cranial nerves. Their story is different. But in peripheral nerves, all the nerves are mixed nerve: sensory, motor, and autonomic. This see the dermatome. Study of dermatome and myotomes. It is basically a very scientific study, and it is truly a mathematics, nothing else. Just see, you can precisely appreciate which level clinically. I am talking about the era prior to the MRI, when we don't have any tool to diagnose the level at which a spinal cord is affected. We used our clinical tools, and it was a very beautiful demarcated here. You have a particular dermatomes. You are getting pain, you are getting numbness, you are getting painless sensation. These all are precisely demarcated in our body. Like just see the sacral area, just see the palm area, just see the thumb area. So it is a particular nerve is supplying the area, and we make a particular dermatome accordingly. Just see here. This is the sacral area. Just see the hand area. This is where is this? Yeah, this one. If you are getting a pain here, you can just appreciate, yes, it is from the cervical cord, and which part of the cervical cord, which nerve is involved. Just see it, and accordingly the myotomes. Cervical and lumbosacral dermatomes and myotomes. This is the some important level, like medial malleolus, thumb, middle finger C7, little finger C8. You can appreciate it. Just see it carefully. It is a very important landmark, and accordingly you can make your diagnosis without any investigation, just by calculating or by just remembering the important
key points of the spinal level. C7 radiculopathy, you have C8 radiculopathy or C5, C5, whether you have involvement of S1, L4, types of peripheral neuropathy. Just neuropathy might be acute or chronic. It may be mononeuropathy affecting a single nerve. Polyneuropathy, diffuse symmetrical disease usually starting peripherally. Radiculopathy, disease affecting nerve roots. And peripheral neuropathy can affect sensory pathway, motor pathway, autonomic pathway. You commonly encountered Guillain-Barré syndrome or acute inflammatory demyelinating polyneuropathy, in which lots of peripheral nerves are involved. There is diffuse involvement of the peripheral nerve. Radiculopathy you often encountered in your OPD, like a cervical radiculopathy, C6 radiculopathy, C5, C7 radiculopathy, or in limb, lower limb, you can get a S1 radiculopathy, L5 radiculopathy, in which nerve roots are involved. They get compressed or they get affected by any other cause, either by the tumor or anything in the neck or in the lumbar area, and accordingly the symptoms are you appreciate in your hand, in your arm, or in your leg, or in your foot. Peripheral neuropathy can affect sensory pathway, as I have told you, sensory roots, motor pathway, and autonomic pathway. Just see, I have given now there are lots of theory came. What is the cause of peripheral neuropathy? Where it is demyelination, degeneration, or jumping of nerve impulse, or depolarization, polarization. What is the basic cause of peripheral neuropathy? So just I am describing the injury, type of nerve injury, then I will come to the cause of the, just see, neuropraxia. Many times you have heard about the heart injury, or you Saturday night palsy, in which posterior and process nerve get entrapped and you get numbness in your upper limb. After some time it get recovered. It is a neuropraxia, mild, and it is usually recovered. Axonotmesis, injury, severe regeneration. Usually regeneration is there, but it is very slow. And other is neurotmesis. There is a neuroma is formed at the both ends. And many cases in which peripheral nerves when cut, we used to sacrifice the neuroma, and then we have to suture the both ends of the nerves. When we are repairing the brachial plexus injury, or peripheral nerve injury, or foot drop, or radial nerve palsy, then we have to, these are in many cases of neurotmesis, we have to cut it, the neuroma formation, and then we have to suture it, and then we convert into axonotmesis, and then regeneration get started. Now what I was told you, एक और ये चीज है कि मान के चलिए कि ये सारे एक्सप्लेन टर्मिनोलॉजी से एक्सपोजर नहीं, अच्छा, तो वो थोड़ा ठीक से करना था. तो सेक्शन में स्किन प्लस नर्व, मसल्स प्लस, एंड दैट पार्ट इज द एरिया कैचमेंट. ठीक है. अब हम लोगों ने तीन तरह से नर्व इंजरी की बात की. वी हैव टॉक्ड अबाउट 3 टाइप ऑफ द नर्व इंजरी. एक थी न्यूरोप्रैक्सिया. प्रैक्सिया का मतलब कि इंजरी हुई और वो फिर ठीक हो गई. एक्सोनोटोमेसिस में जिसमें एक्सॉन्स, जैसे आप जानते हैं नर्व के 3 पार्ट होते हैं, सेंट्रल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं. एक्सॉन्स जैसे कट गया, एक्सॉन्स कट गया तो क्या होता है कि उसमें रीजनरेशन होने की संभावना होती है अगर न्यूरल शीथ इंटैक्ट हो. न्यूरोटोमेसिस में क्या होता है कि 2 एंड कट के अलग हो जाते हैं और फिर वहां पे जैसे घाव में स्कार बन जाता है वैसे नर्व में स्कार बन जाता है. उसे हम न्यूरोमा फॉर्मेशन बोलते हैं. उस न्यूरोमा फॉर्मेशन में हमें उस दोनों एंड के न्यूरोमा को काटना होता है. काट के फिर नर्व को लेंथनिंग करके जोड़ते हैं, तब उसमें फिर रीजनरेशन के चांसेस बढ़ते हैं. अब
देयर आर 6 पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ पेरिफेरल नर्व इंजरी। पेरिफेरल नर्व इंजरी के प्राय 6 ये मैकेनिज्म देखे जाते हैं। अभी भी वी कॉल्ड इट इडियोपैथिक। हम ये बता सकते हैं कि हम एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं जानते। अगर आपने नर्व्स पढ़ा होगा, नर्व्स के पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, सोडियम पोटेशियम आयन के बारे में पढ़ा होगा, ये सब उन्हीं का बेसिकली उन्हीं के ऊपर आधारित है। आपने वालेरियन डिजेनरेशन पढ़ा होगा, माइलिन शीथ पढ़ा होगा, तो ये सब की व्याख्या इन्हीं 6 पॉसिबल मैकेनिज्म के प्रैक्टिकल वे में कर सकते हैं। हम एकदम कंफर्म रूप से नहीं कर सकते कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी की यही मैकेनिज्म है। डीमाइलिनेशन जैसे होता है गुलिन-बारे सिंड्रोम में। जीबी सिंड्रोम की मैं थोड़ी सी आपको खासियत बता दूं। इसमें एक प्रायर हिस्ट्री होती है, कोई वायरल फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है करीब 3 वीक बैक। उसके बाद मरीज को अचानक से न्यूरोपैथी होती है और जमीन में बैठ के फिर उठ नहीं पाता। फिर धीरे धीरे उसके असेंडिंग टाइप ऑफ द वीकनेस होती है एंड ये प्योरली माने मिक्स टाइप होता है। ये असेंड करते ऊपर की तरफ और धीरे धीरे ये फ्रेनिक नर्व को भी कभी कभी इन्वॉल्व कर लेती है। तो फिर हमारे डायफ्राम की पैरालिसिस हो जाती है और मरीज को हमें वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। तो गुलिन-बारे सिंड्रोम के बहुत सारे केस आजकल हम लोग रेगुलरली ट्रीट करते हैं। इसमें एक प्रायर हिस्ट्री होती है करीब 3 वीक्स की। उसके बाद असेंडिंग टाइप ऑफ द वीकनेस होती है, प्रीडोमिनेंटली मोटर वीकनेस होती है इसमें, और ब्लैडर बाउल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें प्राय। और एंड स्टेज में इसमें हो सकता है कि आपको फ्रेनिक नर्व का और रेस्पिरेटरी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। गुलिन-बारे को हम लोग आजकल एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी के नाम से भी हम लोग एक ब्रॉडर टर्म्स में जानते हैं। अब एक जोनल डिजेनरेशन जैसे टॉक्सिक न्यूरोपैथी है, वो एक जोनल डिजेनरेशन में होती है। जैसे वालेरियन डिजेनरेशन, वालेरियन डिजेनरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अटैक्सिया बहुत होता है। वालेरियन डिजेनरेशन जैसे जो एल्कोहलिक होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा होता है, जिनमें थायमिन की डिफिशियंसी होती है, विटामिन B1 की, उनमें भी बहुत ज्यादा वालेरियन डिजेनरेशन होती है। इसमें पोस्टीरियर कॉलम में जो हमने आपको फैसिकुलस क्यूनिएटस एंड ग्रासिलिस या पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट्स बताए थे, वहां भी अगर इंजरी होती है तब भी वालेरियन डिजेनरेशन होता है। अब आई कंप्रेशन की बात। कंप्रेशन तो जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम आप जानते हैं, मीडियन नर्व का कंप्रेशन, ऐसे हाथ में यहाँ पे मीडियन नर्व होती है, यही कार्पल टनल होता है। यहाँ पे हमारा क्यूबाइटल टनल होता है, क्यूबाइटल फोसा में नर्व दब जाती है। इसी तरह टार्सल टनल होता है। तो कई टनल की व्याख्या की गई एनाटॉमिस्ट के द्वारा। वहां पे नर्व जाते हैं तो जैसे फ्लेक्सर रेटिकुलम है, अगर वो बढ़ गया, उसकी साइज बढ़ गई तो वो नर्व को कंप्रेस कर देती है। तो इसमें अगर हम मीडियन नर्व को कंप्रेस रिलीज कर देते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम में आपने देखा होगा जो मीडियन नर्व के अलोंग आपको टिंगलिंग एंड नमनेस होती है दोनों हाथ में, कभी कभी वीकनेस हो जाती है, कभी मसल की एट्रोफी भी हो जाती है। तो कार्पल टनल, टार्सल टनल, जितने कंप्रेसिव न्यूरोपैथी हैं वो सारी न्यूरोपैथी हम ऑपरेशन के द्वारा इसको बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। और इनमें जस्ट जो इंट्रैपमेंट होता है जिस फोसा में, उस इंट्रैपमेंट को हमें हटाना होता है, तो उसे हम हटा देते हैं। अब आया इन्फॉक्शन। आप सब जानते हैं कि कोई भी चीज को जिंदा रहने के लिए ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, नर्व्स को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी आपने नाम बहुत कॉमनली सुना होगा एंड इट इज प्रीडोमिनेंटली अ पेरिफेरल न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी क्या होता है कि माने नर्व्स इंफाक्ट हो जाती है क्योंकि उनकी ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। जो मेन कॉज अगर आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी की पूरे अपने इंडिया में बोलेंगे तो ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी से भी होता है, एनीमिया से भी होता है, थायराइड से भी होता है, अभी मैं आगे आऊंगा। लेकिन डायबिटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीडोमिनेंट कॉज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी इन आवर कंट्री एंड मेनी टाइम्स यू हैव सीन द केस कि हाथों में टिंगलिंग एंड नमनेस होती है, चलते समय पैर से चप्पल निकल जाती है, लगता है रुई के कॉटन वूल सेंसेशन होता है, लगता है आदमी रुई के गद्दे पे चल रहा है, रात में अंधेरे में वो चल नहीं पाता है ना। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं पेरिफेरल नर्व्स के। पेरिफेरल नर्व्स यूजुअली डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होती है, इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि ये जो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं मिक्स टाइप की होती है, सेंसरी मोटर और ऑटोनोमस दोनों।
तो अगर आप बहुत ज्यादा डायबिटीज न्यूरोपैथी होती है, उनमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी हो जाता है, वो सबसे डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना। फिर आपकी लेप्रेसी है, थायराइड है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, या हाइपोथायराइडिज्म है, या ग्वाइटर है, या अदर ग्रैनुलोमेटस डिजीज है, सार्कोइडोसिस है, इनमें इन्फिल्ट्रेशन होता है, उसके कारण भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। तो आपको जो 2-4 कारण याद रखने हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी को, जो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम आएंगे, कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी में ये मिक्स टाइप की नर्व होती है, मीन सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक, तीनों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज हमारे कंट्री में डायबिटीज है, और आपको हमेशा केसेज आते होंगे कि पसीने ज्यादा आते हैं, पसीना कम आता है, कभी कभी पेनलेस अल्सर करके आते हैं। पेनलेस अल्सर का मतलब पैर जल गया, आग ताप रहे थे, हाथ जल गया, पता नहीं लगा। ये इट इज अ टिपिकल काइंड ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये श्रिंगोमाइलिया में भी होता है। श्रिंगोमाइलिया क्या होता है कि जहां आपकी स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंट्रल कैनाल होती है वो वाइडन हो जाती है, और उसके चारों तरफ जितने ट्रैक्ट होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो श्रिंगोमाइलिया में हम लोग चूंकि ऑपरेट करते हैं, उसके पानी को एक ट्रैक्ट बना के निकालते हैं ताकि उसका एक्सपेंशन ना हो। तो श्रिंगोमाइलिया में धीरे धीरे क्या होता है, जितने ट्रैक्ट्स होते हैं वो पानी के कारण खराब हो जाते हैं। तो श्रिंगोमाइलिया के भी कई टिपिकल फीचर्स होते हैं, उनमें पेनलेस बर्न्स होते हैं, पेनलेस बर्न्स हो जाते हैं उसमें। फिर सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ कॉर्ड होता है, साबे होता है। बहुत सारी पेरिफेरल न्यूरोपैथी बहुत इंटरेस्टिंग है, कई सिंड्रोम्स होते हैं। हॉर्नर सिंड्रोम में भी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम का टोसिस, महारथित, एनाइडोसिस, लॉस ऑफ स्पाइनल, सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स है। हॉर्नर सिंड्रोम के 4 ट्रायड बोलते हैं, बाद में एनहाइड्रोसिस उसमें जोड़ा गया एक वैज्ञानिक के द्वारा। ये 5 फीचर्स होते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। तो वो भी एक तरह का आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सम्मिलित रूप। तो ये आपको दिमाग में अपने प्रैक्टिस में ये हमेशा याद रखना है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी में डायबिटीज को ध्यान रखना है, आपको एनीमिया को ध्यान रखना है, थायराइड को ध्यान रखना है आपको, फिर आपको कंप्रेशन को ध्यान रखना है। कोई एक्यूट कॉज है तो गुलिन-बारे सिंड्रोम को याद रखना है आपको, या एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी को रखना है। कोई एल्कोहलिक है तो उसमें भी आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी का ध्यान रखना है। किसी ने विटामिन B12 बहुत समय से नहीं ली तो सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ कॉर्ड को आपको ध्यान रखना है। किसी ने विटामिन C का सेवन नहीं किया, स्कर्वी में भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी बहुत ज्यादा होती है। बेरी का नाम सुना होगा आपने, थायमिन डिफिशिएंसी में। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द कॉज, यू हैव टू रिमेंबर 5 to 6 मेजर कॉज, जो मेन कारण है हमारे कंट्री में, जो मेन पेशेंट्स आते हैं वो हमें ध्यान रखना है। कार्पल टनल सिंड्रोम के पेशेंट बहुत आते हैं, डायबिटिक के बहुत आते हैं, लेप्रेसी अब कम हो गई। लेप्रेसी हमेशा मोनो न्यूरोपैथी के रूप में प्रेजेंट करती है, और लेप्रेसी में एक खासियत ये होती है कि इसमें सेंसरी और मोटर दोनों होते हैं, और मोटर ज्यादा होता है इसमें। आप देखते होंगे कि लेप्रेसी के, आप देखिए पेशेंट क्या होते हैं उनके, आप देखते होंगे भीख मांगने वाले को जरा याद करिए आप। भीख मांगने वाले क्या होता है, आप देखते होंगे कि उनके हाथ कट जाते हैं, उनको पता नहीं लगता। हाथ क्यों कट गए? हाथ कट इसलिए गए क्योंकि उसके पेन का सेंसेशन खत्म हो गया। जब पेन का सेंसेशन खत्म हो गया तो वो आग ताप रहा है या उसको कोई इंजरी हुई तो वो उसको पता नहीं चलता कि कब हाथ उसका जल गया। दूसरी उसकी हीलिंग भी इम्प्रॉपर होती है। कई बार की हमें एम्पुटेशन भी करना पड़ता है लेप्रेसी की पेशेंट में। तो लेप्रेसी अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात करें और मोनो न्यूरोपैथी की बात करें तो मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स बोलते हैं लेप्रेसी में, जो सबसे कॉमन है। लेप्रेसी भी 4 तरह की होती है, लेकिन जो मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स है ये सबसे कॉमन होती है। इसमें सिंगल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब भी हमारे प्रयागराज में लेप्रेसी का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आप समझिए लेप्रेसी कितनी खतरनाक बीमारी रही होगी, लेकिन अब जब से रिफैम्पिसिन आया, हेंसाप्राम आया, डेप्सोन आया, हम लोग पास कई दवाइयां आई 4-5 तरह की, उनसे उन्होंने लेप्रेसी पे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया एलोपैथिक मेडिसिन। तो इसमें क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है और ये मोटर नर्व का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है लेप्रेसी। फिर ड्रग्स के कारण भी हमारी न्यूरोपैथी बहुत होती है। जैसे आप देखिए एटीटी आप जितनी देते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देते हैं, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, कॉम्बिटोल, इथैम्बिटोल, इन सब से न्यूरोपैथी बहुत होती है। तो हम लोग साथ में उसमें आपने सुना होगा कि एक विटामिन पायरोडॉक्सिन दे देते हैं साथ में, या बिनाडोन दे देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो बोलते हैं कि नर्व का जो डीजेनरेशन होता है
या फिर जो कंडक्शन की वेलोसिटी होती है, या जो आपके माइलिन शीथ होती है उसका डिग्रेडेशन होता है। भाई माइलिन शीथ का डिग्रेडेशन मोटर न्यूरॉन डिजीज में क्या होता है, या फिर आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखिए उसमें क्या होता है, वो सेंट्रल कॉज है। हम पेरिफेरल की बात कर रहे हैं, cause of peripheral neuropathy. The cause of peripheral neuropathy often unknown, but two main cause, diabetic and nutritional. न्यूट्रिशनल में B1 थायमिन डिफिशियंसी, B12 की डिफिशियंसी होती है, आप देखे होंगे, और एल्कोहल मैंने बताया यार। इसके अलावा इन्फेक्शन में आजकल HIV बहुत कॉमन है हमारे कंट्री में। HIV में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, लेप्रोसी बताया मैंने, डिप्थीरिया है, टेटनस है, बॉटुलिज्म है। उसका तो हेवी मेटल की पॉइजनिंग होती है। आपको नहीं मालूम होगा कि हमारा जो दिल्ली का एरिया है वहाँ लेड, बॉटुलिज्म के बारे में बता, मैं थोड़ी सी हेवी मेटल के बारे में बता रहा हूँ। ये हमारे ना, जैसे देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो हेवी मेटल्स होते हैं लेड वगैरह, ये जर्मनी अपनी कंट्री में अलाउ नहीं करता है कि वो उसको डंप करे। वो सारे जानते हैं इंडिया में आके डंप होते हैं। इंडिया में गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा खोद के इंडिया ने अलाउ कर रखा है, भाई आप पूरी जितनी डंपिंग कर सकते हैं। दिल्ली में बहुत से एरिया है एंड दीज आर वेरी हजार्डस थिंग्स। जैसे आप जानते हैं नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, और ये वेस्टेज है नाइट्रोजन। 21% ऑक्सीजन है। आप समझिए हम आज कोरोना की महामारी में 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में होने के बाद भी ऑक्सीजन के लिए तड़प गए। इस तरह नाइट्रोजन अगर वायुमंडल में 78% है तो वो नाइट्रोजन हमारे लिए बेकार है। उस नाइट्रोजन को हम नहीं यूटिलाइज कर सकते। उसको हम, नाइट्रोजन के बिना आपका ना प्रोटीन बनेगा, ना न्यूक्लिक एसिड बनेगा, ना कोई ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। नाइट्रोजन के बिना आपकी बॉडी में कोई चीज का निर्माण नहीं हो सकता, आप जिंदा ही नहीं रह सकते। तो नाइट्रोजन कन्वर्ट कैसे होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया से कन्वर्ट होते हैं। नाइट्रोजन की साइकिल होती है, माइक्रोब्स होते हैं, 4-5 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ये सब ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं आपकी बॉडी में। अब अगर आप लेड की, मरकरी की डंपिंग कर देंगे सॉइल में तो ये बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब आप देखिए कितना आपका माने कितना नुकसान हुआ। वो जो पेड़ पौधे हुए उनके थ्रू आप फल खाते हैं, चाहे जो खाते हैं, जो भी चीजें, हम लोग क्या हैं, वी आर, देयर 3 कैटेगरी ऑफ बेसिकली इन लिविंग एनिमल्स। सम आर ऑटो, जो अपने आप बनाते हैं खाना। वी आर हिट्रो, वी कैन नॉट मेक आवर फूड, वी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। हर चीज के लिए देखिए हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, हम अपने ऊपर खाना नहीं बना सकते। बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया अपने ऊपर खाना ही बना सकता है, दूसरे को शेल्टर भी प्रदान कर सकता है। रेड ब्लू ग्रीन एल्गी को मानिए, रेड एल्गी को मानिए, बैक्टीरिया को जो आर्की बैक्टीरिया तक है वो भी अपना खाना बना सकता है, लेकिन मानव अपना खाना नहीं बना सकता। तो जो हमारे पूरे लिविंग किंगडम का विटेकर ने 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया था, सिर्फ इन्हीं चीजों के आधार पे कि कोई खाना बना पाता है, नहीं बना पाता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है। अब आप हेवी मेटल की डंपिंग कर दे रहे हैं। सर ने बोला बॉटुलिज्म के बारे में बताने के लिए। बॉटुलिज्म क्या है कि एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें फूड पॉइजनिंग होती है, और बॉटुलिज्म टॉक्सिन के कारण आपको फूड पॉइजनिंग होती है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये सारे अफेक्ट होते हैं इसमें। फिर हम मैलिग्नेंसी की बात करते हैं। आप जानते हैं मैलिग्नेंसी में धीरे धीरे आपकी पूरी सेंसरी एनर्जी है खत्म हो जाती है। तो इसमें तो तीनों तरह की पेरिफेरल नर्व में जितनी पेरिफेरल नर्व्स हैं मैलिग्नेंसी में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर मेटाबॉलिक कॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच हाइपोथायरायडिज्म इज वन ऑफ द मेजर कॉज इन आवर कंट्री। यू हैव टू लुक इट, हाइपोथायरायडिज्म है कि नहीं जो हमारी कंट्री में आपको दे। Sorry, there is problem in the some network system. Again, we are going to continue it. It is a very important and very interesting topic. I was talking about how the nitrogen gets fixed in our body and how it is recycled in our body.
Then we have to discuss about the metabolic causes like in liver failure, renal failure, hypothyroidism. We used to give MBI, आपने सुना होगा अस्पताल में कि हम लोग मल्टीविटामिन का इंजेक्शन देते हैं renal failure में, liver failure। क्यों देते हैं? इसी पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए देते हैं। अब हमने आपको जीबी सिंड्रोम के बारे में बताया, गुलीन बारे सिंड्रोम, ये बहुत कॉमन है अपने कंट्री में और इसमें 95% से ज्यादा रिकवरी होती है अगर ढंग से इलाज शुरू में हो जाए। गुलीन बारे सिंड्रोम के बहुत से केस आते हैं और इट इज एक्यूट और सब एक्यूट आप बोल लीजिए। प्रेजेंटेशन 3 हफ्ते का होता है। इसमें आदमी के दोनों पैर पूरी तरह बेकार हो जाते हैं, पैर बेकार हो जाते हैं, उसको लगता ही नहीं है, हाथ बेकार हो जाते हैं, कभी जीवन में खड़ा हो पाएगा, चल पाएगा, लेकिन चलते हैं, हम लोग ट्रीट करते हैं। और इसमें स्टेरॉइड्स का बहुत बड़ा रोल है। प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन में, जीबी सिंड्रोम में प्लाज्मा फेरेसिस एक डिफिकल्ट और महंगा इलाज है, बट हम करते हैं उसको, लेकिन रिकवरी भी अच्छी होती है। स्टेरॉइड्स का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि आजकल ना जितनी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हैं, वी ऑल केम इन अ सेम बास्केट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम से। आजकल धीरे धीरे हम ऑटो इम्यून की तरफ बढ़ रहे हैं कि ऑटो इम्यून माने तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है। सेल्फ, जैसे आप जब कोरोना का ट्रीटमेंट भी हुआ, कोरोना में जब कोई इलाज नहीं मिला तो स्टेरॉइड दिया लोगों ने। क्या हो रहा था कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रहे थे। अब उनको ये नहीं पता था कि मैक्रोफेज हैं कि प्लेटलेट हैं। अब जैसे थर्ड लहर की बात आ रही है, तो थर्ड लहर में वैज्ञानिक इस बात के लिए चिंतित हैं कि देयर इज ए क्लबिंग ऑफ डेंगू एंड कोरोना। थर्ड लहर क्यों खतरनाक मान रहे हैं? थर्ड लहर को खतरनाक सिर्फ इस वजह से मान रहे हैं कि डेंगू और जो कोरोना वायरस है, ये दोनों एक साथ अटैक करेंगे थर्ड लहर। जब प्लेटलेट की इतनी कमी हो जाएगी, प्लेटलेट आप कहां से दे पाएंगे? आप ऑक्सीजन दे ही नहीं पाए, प्लेटलेट दे पाएंगे आप? तो देखिए, डेंगू का वायरस भी फ्लेवी वायरस है और कोरोना वायरस भी एक आरएनए वायरस है, दोनों आरएनए वायरस है। वो आरएनए वायरस में आज तक कोई वैक्सीन सक्सेसफुल हुई नहीं। देखिए, एचआईवी 87 में, मैंने पिछली बार भी शायद बोला था कि दूसरे कहीं और लेक्चर ले रहा था तो बोल रहा था, 87 में जब अफ्रीका में पहला केस एचआईवी का आया, उसके बाद इबोला वायरस आया, जीका वायरस आया। ये जीका, इबोला, एचआईवी या डेंगू, ये सब आरएनए वायरस। वायरस की खासियत होती है क्या, तो उसके अंदर डीएनए होगा, नहीं तो आरएनए होगा, दोनों चीज नहीं हो सकती। तो इनको सबको हम रिट्रो वायरस बोलते हैं क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा ये आपके डीएनए पे कब्जा कर लेते हैं और फिर कब्जा करके पूरे बॉडी को आप अपने अनुसार चलाते हैं। तो थर्ड जो लहर आ रही है, उसमें लोग इस बात के लिए आज चर्चा हो रही है। पिछला एक लेक्चर हमने शायद एक लिया था मेडिकल कॉलेज में, उस पर इस बात की चर्चा हो रही थी कि आपको डेंगू और जो दोनों, चूंकि फ्लाइवी वायरस वो भी है, ये भी आरएनए वायरस है, तो अगर दोनों क्लब अप होके आते हैं तो फिर हम इस बीमारी का सामना कैसे करेंगे। और जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये कितनी कारगर होगी, ईश्वर करे कारगर हो आने वाले फ्यूचर में। क्योंकि आरएनए वैक्सीन जितनी ट्राई की गई, डेंगू की भी वैक्सीन बहुत दिनों से ट्राई की जा रही है, लेकिन अभी अब तक हमें सफलता नहीं मिली। एचआईवी की वैक्सीन इतने दिनों से माने करी जा रही है, सफलता नहीं मिली हमें। कोरोना में कैसे सफलता मिल रही है हम नहीं जानते। ये हर्ड इम्यूनिटी के द्वारा हो रहा है, आपकी ऑटो इम्यूनिटी के द्वारा हो रहा है, या फिर वैक्सीन के द्वारा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, बट इन ऑल द केसेस we immune by the auto immunity. The community get immunized by its own immunity. The vaccines has no role. Vaccines have no role in, it has been proved, vaccines has no role in RNA viral disease. Now come to the drugs. There are lots of drugs like I have told about. They are carcinogenic drugs. They are like vincristine, isoniazid, which is an anti-tubercular drug, phenytoin, anti-epileptic drug, excess of vitamin B6. It is a fashion nowadays to get 2 tests done by everyone, vitamin D3 and vitamin B12. Everywhere, पूरे आजकल ना भारत में, चाहे आप ये क्लब का, ये जितने लैब्स हैं, लाल पैथोलॉजी हैं या जितने पैथोलॉजी आए हैं, ये क्या करते हैं कि आपको एक बास्केट देते हैं कि अरे भाई, मैं 1400 में पूरा पैकेज दे रहा हूँ, पूरे टेस्ट कराइए। आप जाते हैं, पूरे टेस्ट कराते हैं, और उसमें 99.9% में आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी मिलती है और विटामिन D3। पता नहीं उनका टेस्टिंग का तरीका क्या है,
इट इज अ कॉमर्शलाइजेशन है, ग्लोबल मार्केटिंग है, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया उनकी टेस्टिंग का क्या मतलब है, कौन सी किट लगाते हैं। मैंने आज तक, और विटामिन B12 मैं कभी नहीं लिखता अपने मरीजों को, ना विटामिन D3 लिखता हूँ। मैं विटामिन D3 इसलिए नहीं लिखता कि 2600 की जांच होती है विटामिन D3, 2600 में हम कैल्शियम D3 सैचेट, अगर हम कैल्सिफेरॉल सैचेट की 60,000 यूनिट जो है हम 8 हफ्ते खिला देंगे, बेचारे का 200-300 में काम चल जाएगा। इसी तरह विटामिन D3 उसको B12 खिला देंगे। अब इसके नुकसान क्या है पूरे संसार में, मैंने खासकर मैं भारत में देख रहा हूँ, भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि विटामिन, जिसको बोलिए कि विटामिन D3 आपने नहीं कराया, डॉक्टर साहब आप सब करा लिए जांच, हमारे विटामिन D3 पकड़ लेते तो हम आज ठीक हो गए। आपने विटामिन B12 नहीं कराया भाई, जब कराएंगे, कभी आज तक मैंने उसका लेवल 200 से 400 के नीचे देखा ही नहीं कभी किसी रिपोर्ट में। बोले मैं देता तो हूँ विटामिन, अगर न दिया हो तब बताइए। और फिर इसका दुष्परिणाम क्या है, लोग सेल्फ ट्रीटिंग करते हैं, अपने आप से ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। यार विटामिन D3 25 के नीचे है, 13 है यार, 12 है, मेरा 6 है। बच्चे में देखिए, बच्चे में 6 देते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि बोलते हैं ना लोग कि सनलाइट में अल्ट्रावायलेट A B C 3 रेज होती हैं, उस सनलाइट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन D3। मेरे एक मित्र हैं, IAS अफसर हैं, उनको विटामिन D3 कमी हुई, 13 विटामिन D3 हुआ। वो बता रहे हैं घंटों धूप में लेटे रहते थे, बोले कि नहीं हम विटामिन D3 का पाउच नहीं खाएंगे। धूप में घंटों लेटे रहते थे, तेल मालिश करवाते थे, सब करवाते थे, लेकिन उनका विटामिन D3 फिर दोबारा कराया तो कभी 23 आए, कभी 24 आए। तो ऐसा नहीं है कि उनको धूप का फायदा नहीं मिला, मालिश का फायदा नहीं मिला, लेकिन ना इनकी जो माने कैसे टेस्ट करते हैं, मैं इनके बारे में एक प्रश्न चिन्ह है ये बहुत बड़ा, कि आपके टेस्ट के क्राइटेरिया क्या है, कौन से किट लगाते हैं आप, कि हमेशा वो रीडिंग आपकी इतनी आती। इसमें एक चीज लिखी हुई है, एक्सेस ऑफ विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। आपको ये नहीं पता कि विटामिन B12 बढ़ा हुआ है तो आप कौन सी दवा खाएं, आप एक मल्टीविटामिन ले लेते हैं। आप मल्टीविटामिन में B1 भी होता है, B12 भी होता है, B6 भी होता है, वो सारे विटामिन होते हैं जिसकी कोई कमी नहीं है शरीर में, उसकी अधिकता आप कर देते हैं, एक्सेस कर देते हैं, एक्सेस की टॉक्सिसिटी भी होती है आपको। तो ये सब चीजें बहुत ही ध्यान से, खासकर मैं विटामिन D3, विटामिन, सर अगर बोलेंगे तो विटामिन D3, विटामिन B6, मैंने विटामिन पे एक लेक्चर लेने की जरूरत है। पहले हम लोग जितने विटामिन है फल खा के हम लोग पूरा कर लेते थे, बोलिए फल खा के या मैंने और सब्जियां खा के, अपना फल वल सब्जी उब्जी भी खाते हैं, साथ में दवा भी खाते हैं, लेकिन वो निकलता वो 400 के नीचे ही, आप देखिए, या 200 के नीचे आएगा। तो इसमें एक ध्यान देने की बात है, एक्यूप्रेशर के माध्यम से बहुत से लोग जुड़े हैं, मेरी बातों को आप सत्यापित करके देखिए स्वतः। आप कभी लाल पैथ कहीं भी रिपोर्ट भेज के देखिए, थायरोकेयर कहीं भी अपनी भी रिपोर्ट भेज के देखिए, आप 3-4 जगह रिपोर्ट साइमल्टेनियसली भेज के देखिए। एंड अदर आर कॉन्जेनाइटल कॉज, इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है आपको, चारकोट-मेरी-टूथ सिंड्रोम में इसमें। चलिए नेक्स्ट। अब मोनोन्यूरोपैथी, जैसे मैंने मोनोन्यूरोपैथी बोला आपको लेप्रेसी के बारे में, मोनोन्यूरोपैथी का बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है लेप्रेसी। अगर कंप्रेसिव न्यूरोपैथी तो मोनोन्यूरोपैथी होती है, जैसे मीडियन नर्व का इंटरप्रेंट होता है, यहाँ पे मैंने बताया ही आपको, यहाँ पे फ्लेक्सुरल रेटिकुलम होता है, ये देखिए फ्लेक्सुरल रेटिकुलम है, तो फ्लेक्सुरल रेटिकुलम को हम काट देते हैं तो जो मीडियन नर्व है वो मीडियन नर्व का रास्ता खुल जाता है, और जो टिंगलिंग, नमनेस, पामर वीकनेस, ये मीडियन नर्व के अलोंग जितनी वीकनेस होती है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। सेंसरी पॉलीन्यूरोपैथी प्रेजेंटेशन, अब देखिए पॉलीन्यूरोपैथी, देखिए फोटो बना हुआ है, ये एक तरह से डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में आप सोचिए। इसको ग्लव्स एंड स्टॉक्स बोलते हैं, जूते और मोजे, जो मोजे होते हैं ना, मोजे, ग्लव्स एंड स्टॉक्स टाइप की इसको बोलते हैं। और ये मेनली आपको जैसे डायबिटीज है या थायराइड है, तो इनकी देखिए ये किस तरह होता है, देखिए डिफिकल्टी इन यूजिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, नीडल्स, सब एक्यूट विद एटैक्सिया ड्यू टू लॉस विद द सेंस ऑफ पोस्चर। पोस्चर का एक सेंसेशन होता है, हम लोग पोस्चर को ऐसे देखते हैं अंगूठे पे, क्या आप ऊपर नीचे फील कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, पोजीशन सेंस देखते हैं। पोजीशन सेंस में हम ये देखते हैं
कि अगर 10 डिग्री तक आप परसीव कर पा रहे हैं तो हम इसको नॉर्मल मानते हैं। बेसिकली हम पैर के अंगूठे में देखते हैं 10 डिग्री नीचे है ऊपर, आंख बंद करके हम पैर के अंगूठे को चलाते हैं और 10 डिग्री अगर वो परसीव कर पाता है तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है पोस्चरल सेंसेशन। Subacute with ataxia due to loss in the sense of postural, feet usually affected first sock and glove stage. अब ऑटोनोमिक पॉलीन्यूरोपैथी, जैसे आप जानते हैं ऑटोनोमिक पॉलीन्यूरोपैथी का सबसे जो हजार्डस चीज होती है जो डायबिटीज में होती है वो होता है पोस्चरल हाइपोटेंशन, है ना। पोस्चरल हाइपोटेंशन, आप खड़े हुए तो आपको अचानक से हाइपोटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वर्टाइगो होती है और कई बार आदमी कोलैप्स भी कर जाता है। जरा ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी को खूब अच्छे से आप पढ़िए, क्या क्या चीज है, एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का डायबिटीज में बहुत बड़ा एक उदाहरण। यूरिनरी रिटेंशन, आपने डायबिटीज के डायरिया कॉन्स्टिपेशन के बारे में सुना होगा, स्वेटिंग कम हो जाती है। कार्डियक एरिथमियाज तो कितने डिटेक्ट हो पाते हैं, बट पोस्चरल हाइपोटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डायरिया कॉन्स्टिपेशन, डिमिनिश्ड स्वेटिंग, ये सब इंपॉर्टेंट कॉज। एंड जैसा मैंने बताया मेनली डायबिटीज को देखिए पोस्चरल माने ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में गुलिन-बारे सिंड्रोम इज प्रीडोमिनेंटली एक मोटर न्यूरोपैथी। अब मोटर न्यूरोपैथी, इसमें प्रोग्रेसिव वीकनेस होती है। जैसे मैंने बोला ना कि गुलिन-बारे सिंड्रोम के बारे में, सबसे पहले आप जमीन में बैठ के उठ नहीं पाएंगे, माने स्टैंडिंग नहीं हो पाएगी आपकी सिटिंग पोस्चर, फिर आप पैर नहीं चला पाएंगे, धीरे धीरे ये असेंडिंग टाइप ऑफ वीकनेस होती है। तो प्रोग्रेसिव वीकनेस और क्लम्सीनेस, डिफिकल्टी वॉकिंग, फॉलिंग होती है, इसमें रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होता है, वेस्टिंग होती है, फुट और रिस्ट ड्रॉप माइट बी सीन, रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाते हैं इसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब डायरेक्टेड रिलेटेड टू द ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ abnormal metabolic control due to metabolic disturbance and accumulation of fructose and sorbitol in the Schwann cell। अब ये देखिए आप, Schwann cell क्या था या ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या थे, ये सब माइलिन शीथ बनाते थे। अब वहीं पे आपका फ्रक्टोज या सॉर्बिटोल का अधिक मात्रा के कारण वहां डिपोजिशन हो रहा। टाइप्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी, सिमेट्रिकल, मेनली सिमेट्रिकल ही होता है, जैसे आप देखें ना ग्लव एंड सॉक्स टाइप का। मेनली सेंसरी एक्यूट पेनफुल न्यूरोपैथी भी होती है इसमें। मोनोन्यूरोपैथी और मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स भी, जैसे जैसे मैंने बताया ना लेप्रेसी में, उसमें क्या होता है कि माने मोटर नर्व या कोई सिंगल सेंसरी नर्व, मोटर नर्व इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और उसी कारण जैसे पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व इन्वॉल्व हुई तो रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। फिर डायबिटिक एमायोट्रॉफी होती है और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी एज यू टोल्ड। This is the most important slide to remember आप सब लोग के लिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी आपको ध्यान करनी है। एल्कोहलिक न्यूरोपैथी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्निकेज कोर्साकॉफ साइकोसिस बोलते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बेरी रोग था या B1 की डिफिशियंसी से, तो इसके मरीज बहुत सारे आते हैं, सोडियम की कमी हो जाती है बहुत से मरीजों में, तो मैंने सीजर देखे हैं एल्कोहलिक न्यूरोपैथी के, कई केसेस में मैंने सीजर देखे। एटेक्सिया होता ही होता है, डेलेरियम ट्रिमेंस बोलते हैं इसको, और विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है। एक मैंने आपको बोला था सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ कॉर्ड, साबे। आजकल साबे खत्म हो गया, जब से सिफिलिस वगैरह रोग खत्म हुए ना, तब से साबे खत्म। साबे वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी। उसमें हम विटामिन B12 की कमी के बहुत एक्सट्रीम केस में साबे होता है, और साबे में इतना बढ़िया इंप्रूवमेंट आता है, अगर 6 महीना आप विटामिन B12 दीजिए तो ऐसा लगता है ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आता है सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन। ये एल्कोहलिक न्यूरोपैथी। हाँ, अब आइए, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की थी इसकी,
Korsakoff syndrome or Korsakoff psychosis tend to develop as a Wernicke's encephalopathy as symptoms go away. Wernicke's encephalopathy cause brain damage in lower part of the brain called thalamus and hypothalamus. Korsakoff psychosis results from the permanent damage to the area of the brain involved with the memory. Presence of neurological symptom caused by biochemical lesion of the central nervous system after exhaustion of the vitamin reservage in the particular thiamine, माने बेरी जो था सबसे पहले इससे थायमिन की लेवल के कारण देखा गया कि कोर्साकोफ साइकोसिस हुई, और इन्होंने दो वैज्ञानिकों ने जब थायमिन को दिया प्रचुर मात्रा में, आजकल थायमिन के इंजेक्शन भी आते हैं, थायमिन का इंजेक्शन दिया तो ये कोर्साकोफ साइकोसिस काफी इंप्रूव हो गया। और ये एक लैंडमार्क डिस्कवरी थी, क्योंकि साइकोसिस या बिहेवियरल चेंज विटामिन की कमी से ये लोग नहीं समझ पा रहे थे, एल्कोहल की कमी से लोग समझ पा रहे थे, लेकिन इन्होंने ये उसका मैकेनिज्म ढूंढा कि नहीं, इसमें थायमिन की कमी से होता है। जब उन्होंने थायमिन देना चालू किया तो फिर एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अब लोकेशन ऑफ लीजन, वो तो मैंने बताया आपको कि भाई ये मैथ है पूरा। अगर आपके पास दोनों ट्रैक्स के आपको मैंने ज्ञान है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स के बारे में नॉलेज है, तो आप पिन पॉइंट, आपको कोई जरूरत नहीं है एमआरआई करने की। आप बता सकते हैं कि लीजन ब्रेन स्टेम में है, हाइपोथैलेमस मेडुला में है, मेडुला में है। जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, यहाँ से कुछ सिखाता हूँ। देखिए, ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन स्टेम में होता है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। अब कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ब्रेन स्टेम के सबसे पहले मिड ब्रेन में आता है, फिर पोन्स में आता है, फिर मेडुला के लोअर बॉर्डर पे पिरामिडल ट्रैक्ट डिकसेट करते हैं, और ये क्रॉस ट्रैक्ट और कुछ एंटेरोलैटरल ट्रैक्ट होते हैं, कुछ कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, कुछ एंटीरियर ट्रैक्ट होते हैं, कुछ लैटरल होते हैं। जो एंटीरियर ट्रैक्ट होते हैं वो क्रॉस नहीं करते, जो क्रॉस ट्रैक्ट होते हैं वो लैटरो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अब देखिए, अगर ब्रेन स्टेम में आप लीजन को कैसे पहचानिएगा, जैसे जैसे आपको थर्ड नर्व निकलती है आपकी मिड ब्रेन से, थर्ड और फोर्थ नर्व, आप देखिए जो आपकी ऑक्लोमोटर है, अगर ऑक्लोमोटर का इन्वॉल्वमेंट है, साथ में कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट आपका गया हुआ है, तो आप लीजन बना सकते हैं कि मिड ब्रेन। फिर आप देखिए 6th और 7th नर्व जो आपकी है, ये निकलती है आपकी जैसे फेशियल नर्व है ना, फेशियल नर्व बेल्स पैल्सी जैसे हुई, बेल्स पैल्सी के साथ साथ में पैरालिसिस हुई, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट भी गया, तो आप बता सकते हैं कि भाई अपर मोटर न्यूरॉन टाइप की बेल्स पैल्सी है कि लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप की। ये लीजन पोन्स में है। मेडुला में जैसे आपकी रेस्पिरेटरी का पैटर्न क्या है, उसके आधार पर आप बता सकते हैं, या लोअर क्रेनियल नर्व गैग रिफ्लेक्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, कफिंग कैसी है, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्रेनियल नर्व है वो मेडुला के लोअर पार्ट से इन्वॉल्व करती है। तो अगर इसके साथ कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है तो फिर हम लोग इसको कर सकते हैं। फिर इसी के आधार पे हम लेवल को लोकलाइज कर सकते हैं क्लिनिकल डिसीजन के आधार पर। जीबी सिंड्रोम भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा टॉपिक है। एक्यूट पॉलीन्यूरोपैथी होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। फॉलोइंग कॉम्पाइलोबैक्टर जेजोनाई और सीएमबी, ये अभी प्रूवन नहीं है लेकिन दवा देते हैं इसकी हम लोग। इन्फेक्शन इंक्लूड, जैसे मैंने बताया 3 हफ्ते का पुराना इन्फेक्शन होता है, सोर थ्रोट से चालू होता है, और सिम्टम प्रोग्रेसिव प्रॉक्सिमली बढ़ते हैं सिम्टम, लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्सेज हो जाते हैं। फेशियल मसल की वीकनेस भी हो सकती है। ऑटोनॉमिक फीचर जैसे मैंने बताया अनकॉमन होता है, ब्लैडर बाउल का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। हमने बोला आपको फ्रेनिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके कारण आपको रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाती है। फिर सबक्यूटेनियस हेपेरिन रिक्वायर्ड रिड्यूस रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, स्पॉन्टेनियस रिकवरी बिगिंस आफ्टर सेवरल वीक्स। अब विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 एक इसेंशियल डाइटरी न्यूट्रिएंट है, and it can lead to number of serious conditions including peripheral neuropathy. There are several causes of vitamin B12. A strict vegetarian diet may promote
of vitamin B12 deficiency because animal-based food such as red meat, dairy product, fish, poultry, eggs are the only recognized source of dietary B12. A lack of B12 or inability of a stomach to act as एक इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा. Lack of vitamin B12 or inability of a stomach acid to aid in absorption also causes this deficiency. Consequently, अब आपका है ना विटामिन B12 का एक नया रूप आया एल-मेथायोनिन. एल-मेथायोनिन क्या करता है, ये स्टमक को पास कर देता है, यहाँ इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती. ये एक विटामिन B12 का आइसोमर है जिसको टेट्राफोलेट के नाम से और कुछ कंपनियां लेकर आई. तो ये एक आइसोमर का फायदा है जहां पे स्टमक की बाध्यता खत्म हो जाती है. किसी को स्टमक में क्रॉन्स डिजीज है या ड्यूडेनम के अपर पार्ट में क्रॉन्स डिजीज है. A lack of vitamin B12 or inability of a stomach acid to aid in the absorption also causes this deficiency. Consequently, drug and reduced stomach acid should not be taken with the B12 supplements. And a number of other conditions, procedures, drugs are associated with the reduced ability to absorb vitamin B12. These are the several causes. सिम्टम ऑफ लैक ऑफ विटामिन B12. अब देखिए सिम्टम एनीमिया आपने नाम सुना ही होगा. एनीमिया तक सीमित है तो ठीक है, लेकिन साबे जो होता है सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ कॉर्ड, नर्व डैमेज, डिजेनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये साबे की मैं बात कर रहा हूँ. कॉमन फॉर एनीमिया टू डेवलप फर्स्ट, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द कॉज, स्पेशली इफ अ पर्सन इज टेकिंग फोलेट सप्लीमेंट. अ लैक ऑफ विटामिन B12 डैमेज द माइलिन शीथ दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स नर्व. विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ नर्व्स सीजेस टू फंक्शन प्रॉपर्ली. अब देखिए कोरोना ने ना एक चीज कर दिया कि सब लोग को 3 महीने तक विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C खिलवा दिया, विटामिन D3. तो करीब बहुत सारे मरीजों की पेरिफेरल न्यूरोपैथी ऐसे ठीक हुई. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आई थी, भाई आपको 5 ड्रग देने हैं, इस 5 ड्रग में आप एक विटामिन D3 भी देते थे, एक विटामिन का सप्लीमेंट देते थे, आप कुछ दिन डॉक्सीसाइक्लिन भी आपने दिया, एजिथ्रोमाइसिन दिया. वो सब कितना असर किए, लेकिन जिनको कोरोना नहीं था वो बहुत सारे लोग की विटामिन B12 की डिफिशिएंसी खत्म हो गई, विटामिन D3 की डिफिशिएंसी खत्म हो गई, और बहुत लोगों का बहुत चीजों में सुधार भी हुआ. सिम्टम एंड साइन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. अब देखिए क्या सिम्टम एंड साइन देखिए कितना है इनका. जो साबे का है पेन नमनेस तो ठीक है भाई, समझ में आता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन जब गड़बड़ा जाता है, एटेक्सिया या टैंडम वॉकिंग बोलते हैं, या जब आप फैशन डिजाइनिंग को देखते होंगे, फैशन जो रैंप पे वॉक करते हैं वो एक तरह की टैंडम वॉकिंग करते हैं, एक ही सीधी रेखा में ऐसे ऐसे चलते हैं. एटेक्सिया में क्या होता है कि हम एक सीधी रेखा में नहीं चल सकते, हम स्विंग होती है हमारी, राइट साइड, लेफ्ट साइड, या इंटीरियर स्विंग होगी, पोस्टीरियर स्विंग होगी, ये सबसे डिफिकल्ट होता है. तो विटामिन B12 का टिंगलिंग एंड नमनेस तो लोग बर्दाश्त करके चलते हैं, लेकिन जब एटेक्सिया होना चालू होता है तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता है. It is very difficult and it is very rewarding. जब आप ट्रीट करिएगा ना विटामिन B12 को, इतना रिवार्ड मिलेगा आपको. It is one of the most rewarding symptom of vitamin B12 deficiency. मैं जैसे आदमी लगता था कि यार डॉक्टर साहब लग रहा था कि दारू पी के चल रहे थे, पता नहीं सर आपने कौन सी ऐसी दवा दी कि हम सीधा चल. जो है बता रहे हैं, तो एक आध बता भी दीजिए कि जो सेफ हो लोग जो है. हाँ आपका सर, जैसे ना लोग बोलते हैं सर जैसे हमारा बच्चा, हम ये लगता है ना कुछ दिन से दारू पी के चल, भाई उस औरत बेचारे को क्या मालूम कि इसका विटामिन B12 का अटेक्सिया हो रहा है, इसके माने कॉर्ड की फेसियस क्यूनिएटस और ग्रेसिलिसिस में वहां पे जाके इसके लीजन हो रहा है. तो जब रिवार्ड हो गए 6 महीने बाद वो गांव की औरत आती है कि वाह डॉक्टर साहब क्या दवा दी आप, सीधी एकदम बढ़िया चलने लगे, एकदम अच्छे. तो विटामिन B12 की जो हमने आपको शुरू में बताया कि इसका रिचेस्ट सोर्स होता है, ये एनिमल फूड्स में ज्यादा होता है, जैसे एग में. हम वेजिटेरियन की सबसे बड़ी दिक्कत है. अब इंडिया में जितनी लैब में विटामिन B12 कमी आ रही है, हो सकता है भाई हम वेजिटेरियन ज्यादा हो, इस कारण इंडिया में आ रहे. तो हमें विटामिन B12 कुछ जो स्प्राउटेड्स होते हैं अपने, उनमें आप ले सकते हैं. जो एग लेना चाहें एग ले सकते हैं, और फ्रूट्स में भी होते हैं, कई तरह के फ्रूट्स होते हैं जिनमें विटामिन B12 पाते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि 45-50 के बाद
आदमी को 3 महीने का विटामिन B12 का कोर्स जरूर कर लेना चाहिए, और विटामिन D3 और हर साल एवरी ईयर, जैसे कोरोना का बूस्टर डोज लगाने की बात चल रही है ना, भैया 2 साल में कोरोना का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, बूस्टर डोज लगवाइए। उसी तरह आप विटामिन B12 का एक बूस्टर डोज लगाते जाइए, 1 महीना 2 महीना एक गोली जरूर लीजिए विटामिन B12। और आजकल ना इसके आइसोमर वाले फॉर्म आए, जो टेट्रा माने आइसोमर के फॉर्म में है, एल मेथाइल फोलेट या मेथाइल कोबालामिन या साइनोमेथाइल कोबालामिन, तो दूसरी चीज हो गई। इसके आइसोमर भी आ रहे हैं, ताकि जो इंट्रिंसिक फैक्टर या अदर फैक्टर वाले हैं उसको बाईपास किया जा सके। सेंसरी लॉस, वीकनेस, नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने स्कर्वी के बारे में बोला। देखिए स्कर्वी की खोज क्या हुआ ना, कि जब क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर ने, उसका क्या था, वो नाविक था, उसकी एक आदत थी कि वो, भाई उस समय मैं 1400 कोलंबस के जमाने की बात थी, 1494 में शायद अमेरिका की खोज। तो वो क्या करता था, जितने नाविक थे ये लोग माने समुद्र में घूमते रहते थे, और जहां कोई उनको लगता था कि जमीन है वहां उतर जाते थे। तो ये सालों चलते थे, उनको कोई फ्रेश फूड मिलता नहीं था। विटामिन सी हमेशा फ्रेश फूड में होता है, तो इनके विटामिन सी की कमी आ गई थी। तो इनको दिक्कत क्या हुआ, अलेक्जेंडर ने देखा उसने कि हमारे जितने नाविक हैं उनको घाव जो हो रहे हैं वो भर ही नहीं रहे हैं, भाई कट जा रहे हैं, भर ही नहीं रहे हैं, क्या बात। जबकि हम विटामिन D3 भी उस समय खूब लेते थे, नाव पे विटामिन D3 खूब होती है, वो फ्रेश सब्जी भी लेके खाते थे, मछली मार लेते थे, मछली खाते थे, लेकिन वो फ्रेश फूड नहीं खा पा रहे थे। उसी से स्कर्वी की खोज हुई वहां। और स्कर्वी जैसे मैंने बताया नर्व डिस्फंक्शन का एक बहुत बड़ा कॉज है। तो विटामिन सी भी देखिए, वैज्ञानिक जब कुछ नहीं मिलता, आपको क्या खिलाया कोरोना में, सब लोगों ने खाया होगा, कोई ऐसा आदमी बचा नहीं जिसने, कोई ऐसी ड्रग कंपनी नहीं जिसने खूब पैसा ना कमाया। मार्केट में विटामिन सी की शॉर्टेज हो गई थी, विटामिन D3 की शॉर्टेज हो गई थी, चाइना रॉ मटेरियल देता नहीं था, विटामिन सी कमी हो गई। विटामिन सी भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो करीब 600 साल पुराने डिस्कवरी के बाद से। तो देखिए आगे आ रहा है हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कर्वी। विटामिन सी इज इंपॉर्टेंट टू नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग माइलिनेशन एंड स्वान सेल डिफरेंशिएशन, ऑल्दो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन आर। ये सब क्या आपको क्या बोला गया, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, यही बोला गया ना आपको कोरोना में। तो आप विटामिन सी लीजिए, विटामिन D3 लीजिए, अपने अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाइए। तब तक रामदेव बाबा भी आ गया बीच में, इम्यूनिटी बूस्टर मैं दे रहा हूँ। ये इम्यूनिटी बूस्टर कर क्या रहे हैं आपका, ये यही लेवल बढ़ाते हैं, ये स्वान सेल का डिफरेंशिएशन बढ़ाते हैं, ये माइलिनेशन शीथ को बढ़ाते हैं, आपकी नर्व को स्ट्रॉन्ग करते हैं। भाई विवेकानंद जी बोलते थे ना कि फौलाद के स्नायु और फुटबॉल इस तरह बोलते थे ना कि आपके जो स्नायु है, नर्व्स हैं, वो फौलाद की तरह होने चाहिए। तो इम्यूनिटी सिस्टम में है क्या, ये आपके जो डिजेनरेशन नर्व्स के हैं उनको कम करे, आपकी माइलिन शीथ को स्ट्रॉन्ग करे, नर्व का जो कंडक्शन है उसको फास्ट करे। तो विटामिन सी भी एक इंपॉर्टेंट कॉज। सिम्टम एंड साइन ऑफ विटामिन सी डिफिशिएंसी। अब जैसे मैंने बताया कि भाई आप सोचिए उसके बारे में कि मंथ माने बहुत दिन लगता है इसको, विटामिन सी लैसिट्यूड हो गया, वीकनेस, इरिटेबिलिटी, वेट लॉस, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम ऑफ स्कर्वी के बहुत सारे सिम्टम होते हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा एक गम की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, स्पॉन्जी गम्स हो जाते हैं, जैसे एब्सोलिन के कारण होते हैं, गम्स ब्लीड करने लगते हैं, स्पॉन्टेनियस हैमरेज हो सकते हैं। मैं पढ़ाते पढ़ाते सोच रहा था कहीं मेरे में तो विटामिन सी की डिफिशिएंसी नहीं हो रही है कि हम लोग कभी सोचते नहीं चीजों पे कि भाई विटामिन सी, विटामिन B12 के बारे में आदमी। हमारे पूरे घर को जो है विटामिन B12 की डिफिशिएंसी, बीइंग वेजिटेरियन 100%। Other symptom of this sign include femoral neuropathy, including hemorrhage, femoral seizure. In infants, infant में different तरह से प्रेजेंट करता है, stunted growth हो जाती है उसकी। अब ये मेरा ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने। साबे का दुर्भाग्य है कि जब से सिफिलिस गया तब से साबे चला गया। साबे में देखिए ये एक्सट्रीम कंडीशन होती है। देखिए पूरी ये ना मैंने आपको बताया था ना,
ये फैसिकुलस क्यूनेटस ग्रेसिलिस, और ये एक ट्रैक्ट होता है, 3 ट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे पोस्टीरियर कमीसर में। ये पोस्टीरियर कमीसर है, ये एंटीरियर कमीसर है। तो ये साबे में जितनी डॉर्सल कोड होती है ये नष्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ कॉर्ड। इसमें डीजेनरेशन ऑफ डॉर्सल कॉलम एंड लैटरल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ड्यू टू डीमाइलिनेशन। इसमें देखिए होता क्या क्या है, सेंसरी डेफिसिट होती है, पैरेस्थीसिया होती है, वीकनेस होती है, अटेक्सिया होती है, आदमी इधर उधर घूमने लगता है, गेट डिस्टर्बेंस होता है, और पैराप्लीजिया भी हो सकती है। साबे बहुत it is different. Other neuropathy I have told you, like these are not the common neuropathy. You don't have to remember all the neuropathy. Just remember the important neuropathies. General investigations you all know. Neurophysiology testings are very costly. Sometimes we need it. Nerve biopsy in case of mononeuritis multiplex, or in case of leprosy we have to confirm it. या नर्व बायोप्सी भी करते हैं, मसल बायोप्सी भी करते हैं। जैसे मसल बायोप्सी जैसे हम लोग जितनी मसल एट्रोफी होते हैं उनमें करते हैं, नर्व बायोप्सी बहुत सारे केसेस में करते हैं। अपना ये जनरल मैनेजमेंट क्या है। जनरल मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि कारण क्या है, फिर सिम्टम क्या है। If pain can give anti-epileptic, antidepressant drug, tramadol, foot care. Foot care आजकल ना एक अलग सब्जेक्ट है, आप देखते होंगे एक पूरी ब्रांच है पीडोलॉजी के नाम से। उसमें क्या है कि भाई फुट आपका एक ऐसा चीज है कि अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई और आप फुट कभी आप बिना चप्पल के चलते हैं, कोई सुई गड़ गई आपके, या पेनलेस बर्न्स हो गए, वो हील तो होते नहीं है। तो फुट का केयर बहुत एक तरीके से बताया जाता है। इट इज ए न्यू ब्रांच डेवलपिंग इन द फील्ड ऑफ द एलोपैथी, फुट केयर। और सिर्फ पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से वेट रिडक्शन, हाँ अपना वजन कम करिए। वेट रिडक्शन का फायदा कहाँ होगा, जहां इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी, जैसे आपकी मीडियन नर्व है, क्यूबाइटल फोर्सा सिंड्रोम है, टार्सल टनल सिंड्रोम है, वॉकिंग एड्स फॉर दोज विद सीवियर लेग वीकनेस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, चलो एक्यूप्रेशर थेरेपी, जस्ट सी फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी। This is the flow chart. You can appreciate it, just appreciate it, how you have to proceed. You can proceed one by one, and accordingly you can diagnose and then you treat. Thank you very much, Anil ji. You have given me opportunity. Thank you, JP Agrawal sir and his team, Ram Kumar Sharma, Dr. Vishal and all others. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश खेतान सर। और यह पेरिफेरल न्यूरोपैथी का बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन 1 घंटे में आपने बहुत अच्छे तरीके से और सरल भाषा में सर समझाया। इस सब थेरेपिस्ट के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। और जो लोग अभी हमारे पास 20 मिनट्स टाइम है, तो जो लोग भी इस सब्जेक्ट रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कुछ सवाल पूछना चाहते हो, सब्जेक्ट रिलेटेड पूछें। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखें कि सब्जेक्ट रिलेटेड आज जो सर ने पढ़ाया है उससे संबंधित अगर आपकी क्वेरी हो तो अपना हैंड रेज करें यहाँ पे और अनम्यूट कर देते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। शिरीष कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए और सवाल पूछिएगा। शिरीष कुमार जी। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार शिरीष जी। सर मेरे B12 की कमी थी, तो उसके लिए मैंने इंजेक्शन तो लिए, लेकिन उसके लिए कोई सप्लीमेंट लिया जा सकता है सर? हाँ बिल्कुल। उसमें क्या लिया जा सकता है सर? सिंपल न्यूरोबियन फोर्ट लीजिए। न्यूरोबियन फोर्ट? हाँ। कितने समय तक लिया जाए सर? कम से कम 3 महीने। 3 महीना? वैसे मैंने 15 से 16 इंजेक्शन लिए सर, लेस देन 150 था। अच्छा, अब कितना है? अभी मेरा है करीब 350 के आसपास। 400 से 900 के बीच में ले आइए उसको। 400 से 900 तक ले आए सर। हाँ, इसके बीच में। तो ये न्यूरोबियन फोर्ट के थ्रू या इंजेक्शन लेके? नो,
इंजेक्शन मत लीजिए, अच्छा, टैबलेट लेकर। न्यूरोबिन फोर्ट शुरू कर दूं सर? हाँ, कोई भी मल्टीविटामिन अच्छी कंपनी की, इसमें देखिए अच्छा सर। विटामिन B12 होगा 1500 मिलीग्राम मेथाइल कोबालामिन के नाम से, आप अच्छा देखिए सर। आएगा मेथाइल कोबालामिन, जी सर, जी सर। तो 1500 मिलीग्राम होता है, रोज जी सर, 1500 मिलीग्राम सेपरेट टैबलेट ले लीजिए। 1500 मिलीग्राम की? हाँ 1500 मिलीग्राम। जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू श्री जी। अजय कुमार वर्मा जी। जी सर। हाँ सर, नमस्ते। हाँ आवाज आ रही है सर? वर्मा जी, अब बताइए आप कहाँ हाँ से जी, आ रही है सर। कहाँ से बोल रहे हैं, ये भी बताइए। गोरखपुर से। गोरखपुर से। हेलो, हाँ जी। गोरखपुर से। बोलिए अजय जी, बताइए। सर मुझे जो है डायबिटिक न्यूराइटिस, हाँ हाँ डायबिटिक न्यूराइटिस हो गई थी सर, हम्म, जिसमें पैर में सोइलिंग आ गई है। हाँ। सोइलिंग कम नहीं हो रही है, तो क्या किया जाए जी? और इसी बीच में ये डायस्टोलिक कुछ दिक्कत आ गई थी हार्ट में, तो उसकी जो दवा उन्होंने दिया नहीं, कोई एंटीबायोटिक दे करके उसको चला रहे हैं। विशाल जी के पास रिपोर्ट दिया है। देखिए पैरों में जो सूजन है ना, वो 3 कारणों से है जी, आपको। दोनों पर। जी तो जी। पोस्चरल ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी भी हो रही है आपको, हाँ दूसरा जी। डिपेंडेंट एडिमा भी होता है आपको, हाँ हाँ, पहले दर्द भी होता था बहुत, तीसरा आप ये पेन देख भी लीजिए आते। आपका यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल कैसा है, कोई डायबिटिक जी न्यूरोपैथी, यूरिया क्रिएटिनिन ठीक है आपके? हाँ, यूरिया थी और किटनाइन भी बढ़ रहा था, लेकिन अभी ठीक है, किटनाइन ठीक है, नॉर्मल है। तो आप फिजिशियन से आप कंसल्ट करिए, करके दिखवाइए। अच्छा अच्छा, नहीं कंसल्ट तो किया है सभी से। यहाँ हाँ जो है आपके हार्ट से भी दिखाया था, आपका डॉक्टर RKC मिश्रा से भी दिखाया था, और नवीन जयपुरिया से भी दिखाया था, लेकिन स्वेलिंग नहीं जा रही है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ पॉइंट, जी आप महीने भर लगाइए। जी। बोथ इंडेक्स फिंगर, नहीं, आवाज आवाज भरभरा रही है। जी बोथ बोल रहे हैं। इंडेक्स फिंगर, सर विद ड्यू परमिशन। सर आवाज नहीं सुनाई दे रही है थोड़ी सी। बोथ इंडेक्स फिंगर, 9th वर्टिकल अपोजिट फ्लो। आलोक सर के नाम से होगा। हेलो। हाँ हेलो सर, आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बोथ स्मॉल फिंगर। अनिल जी को होस्ट बना दीजिएगा आलोक सर को, हाँ सर जुड़े हैं उससे। हाँ हाँ बोथ IF, am I audible? जी, ऑडिबल सर। बोथ IF, बोथ IM, 0136 I tone, 0136 tone, 32457 sedate। 24598 जी। इसको करिए। ये कफ जॉइंट पर सर कि पित्त जॉइंट पर? 9th वर्टिकल अपोजिट फ्लो, अच्छा 9 वर्टिकल अपोजिट फ्लो। अपोजिट फ्लो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, सतवंत सिंह जी। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, मैं नमस्कार। मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ जी, बोलिए। अग्रवाल साहब से मेरा एक छोटा क्वेश्चन है, जो नहीं, अभी सर, डॉक्टर खेतान सर खेतान ने जो अभी पढ़ा रहे थे जी विटामिन की कमी के बारे में, जी कि विटामिन B12 की कमी हो जाती है और विटामिन D की कमी हो जाती है, तो जो आप जो ट्रीटमेंट दिया हुआ है बुक्स में भी अवेलेबल है, वो मेरी कमी नहीं है, बट क्या उस ट्रीटमेंट को दिया जा सकता है रेगुलरली? देखिए, हाँ जी। पहले तो बात बता दूं, ये मिस्टर सतवंत सिंह जो हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे और बहुत बड़ी शख्सियत, और ये हमारे कैंपस कोर्स के स्टूडेंट थे 2nd सेमेस्टर के, और खेमका जी की और सारी किताबें इनके पास है, और ये इन्होंने कैंसर के पेशेंट तक को अपने परिवार को
गाइडेंस ले लेके किया है। और आज मैं ये चाहूंगा कि आप डॉक्टर खेतान साहब से ही ये जवाब लें। और आप ठीक है सर। हाँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं हाँ जी। कि मुझे भी न्यूरोपैथी है और हाँ, डॉक्टर साहब ने मुझे, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा परिवार स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, तो B12 की डिफिशियंसी सबको है। हाँ, सभी लोगों को डिफिशियंसी है। और चूंकि मुझे इतने पॉइंट लगाने पड़ते हैं, तो मैंने इनके न्यूरोबिन फोर्ट ये बहुत ही सिंपल एक छोटी सी मेडिसिन है। इसको आप लेके देखिए। ये खेतान साहब का एक उपहार है। ये डॉक्टर ही नहीं, बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे इतनी बात बता रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा सर कि ये डॉक्टर खेतान साहब अपने मुखार बिंदु से इस बात को कहें। हाँ सर। यस सर। हाँ पूछिए, कोई और सवाल हो तो, किसी और को पूछना हो। सर यही पूछना था कि ये मतलब जो अभी साहब ने बोला न्यूरोबिन फोर्टे जो है इट इज गुड फॉर B12 है। हाँ तो ये ले सकते हैं, मतलब कितना दिन? हाँ। 3 महीने आपने बताया था ना? हाँ 3 मिनट। ओके सर, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? प्रीति जी नहीं सवाल सर, पूछेगा। नहीं सर, और मेरा कोई नहीं है। एनी अदर पार्टिसिपेंट? हाँ प्रीति जी अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे करके सवाल पूछिएगा। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रीति जी। नेक्स्ट हाँ अनीता जी सवाल पूछिए। हेलो। हाँ अनीता सिंह जी। हाँ पूछिए अनीता जी। किसी महिला को जिसका एज 50 वर्ष हो गया हो, उसको नींद की बहुत प्रॉब्लम है, क्या B12 की वजह से भी नींद नहीं आती? हेलो सर। नहीं, आमतौर पर नींद से इसका कोई संबंध नहीं होता मैडम। और जिस स्टेज पे विटामिन B12 की अगर नींद नहीं आती है उस लेवल पे, आपको कई और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अटेक्सिया है, आप चल नहीं पाएंगे। तो यू शुड नॉट कोरिलेट विटामिन इंसोम्निया। तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए अगर नींद ना आ रही हो? जैसे दिन में सो लो 1-2 घंटा तो ठीक है, लेकिन रात में जैसे 10-11 बजे के बाद बिल्कुल ही नींद नहीं आती। मैडम कोरोना में ना सबको आजकल नींद नहीं आ रही है। तो अलग चीज है सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या ये न्यूरो से रिलेटेड है या ऐसे ही है? मैं बता रहा हूँ ना, एक जनरल फैक्टर ही है नींद के बारे में, ज्यादा टेंशन ना लीजिए। नींद नहीं आ रही, अपने नींद आएगी आधे घंटे कितना बताब लेके पढ़ते। हाँ सर ठीक है, अगर नॉर्मल चीज है तो कोई बड़ी बात नहीं। मैडम तुम नॉर्मल, डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है, थैंक यू सर। अनीता अग्रवाल जी। हाँ अनीता जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। और कोई और को ले लीजिए, आवाज नहीं आ रही। प्रवीण चौहान जी रायपुर से। हाँ प्रवीण चौहान जी नमस्कार, बताइए। अनम्यूट कर लीजिए प्रवीण जी, आवाज नहीं आ रही है। मधुर जी। हाँ जी सर। हाँ पूछिए। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच, आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा है। सर मैं बस एक क्वेश्चन ये है सर कि एक मेरा जो नेक है इसमें प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो गया कि अचानक से इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ा और ये नेक थोड़ा बेंड हो गया है। पहले ज्यादा बेंड था और अभी एक्यूप्रेशर से इतना रह गया है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या इसमें नर्व का भी कोई इशू हो सकता है? अगर हो सकता है तो मतलब कैसे समझे कि नर्व का इशू है या नहीं है, अदर देन रिपोर्ट्स ऑफ कोर्स MRI के अलावा? अगर ऐसे ही सिम्टम्स से समझ
बताएं। मैडम निश्चित रूप से नर्व का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही। अब पेरिफेरल नर्व का या सर्वाइकल की कौन सी रूट दबी हुई है आपकी, वो देखना होगा मैडम। इसमें विटामिन B12 फायदा नहीं करेगा मैडम। सर B12 की बात नहीं है, हम तो सर एक्यूप्रेशर के पॉइंट से ठीक कर रहे थे उसको, इन्फ्लेमेशन ठीक कर रहे थे, उसी से सर काफी फायदा हुआ। आप हाँ, मुझे आप MRI की रिपोर्ट भेजिए मैडम, मैं देख के आपको बता दूंगा। MRI अगर है तो आपके पास, अगर नहीं है तो फिर आप पूरे सिम्टम को फिर भेजिए। आप जो ये पढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम लोग को अगर अपने आप थोड़ा, मतलब ऑफ कोर्स आप बहुत सारी बुक्स का पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग एक बेसिक बुक से थोड़ा समझना चाहें तो या कुछ न्यूरोपैथी मैडम, नॉट न्यूरोपैथी, जनरली सर एक ऐसा आइडिया लेना जिससे हम पेशेंट को ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर सके, या हमारे पास जो लोग आते हैं उनको ज्यादा थोड़ा एलोपैथी की समझ भी यूज कर सके। मैडम एक किताब आती है CMDT, लिखिए आप नाम, कंबाइंड CMDT होती है मैडम। अच्छा, CMDT कंबाइंड मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये किताब हर साल रिवाइज होती है, एंड इट इज एन अमेरिकन बुक एंड इज द बेस्ट बुक इन दी। एक तो हमारे पास 2 ही बुक आती है। ये बुक की खासियत क्या है कि हर साल रिवाइज होती है, करीब 1,500-2 हजार की बुक मिलती है, लेकिन इसके कोई हिंदी संस्करण नहीं होते, इंग्लिश के में बुक होती है, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। आपको लेना हो तो ले लीजिए। और अगर सर आपको कांटेक्ट करना हो तो सर आपका नंबर या किस तरह से कांटेक्ट करना है, किसके थ्रू कांटेक्ट करना है? MRI को आप नहीं जानते कि नहीं मैडम, आप ना गूगल पे जाके मेरा नाम टाइप करिएगा, वहाँ साइट में मिलेगी। ओके रश्मि जी, डॉक्टर रश्मि झा जी। नमस्कार सर, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और हाइपरटेंशन भी है। तो जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो उठने में दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे, और फिर उसके बाद उठने पे डिसबैलेंस लगता है, चलने में दीवार का सहारा लेना पड़ता है। तो यानी मुझे ऐसा लगता है सी से यहाँ सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, तो पीछे एक्सटेंशन में मेरी दिक्कत है। तो ये मैडम आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ आपको ना वर्टाइगो हो रहा है, आपको बेसिकली ना वर्टाइगो हो रहा है। वर्टाइगो होता है, वर्टाइगो हो रहा है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है मुझे। मैडम इसमें ना आप ऐसा नेक का मूवमेंट कम करिए, गर्दन में पट्टा लगा के रखिए, और जो वर्टाइगो की दवाएं हैं वो आप लीजिए। इसमें यहाँ लेफ्ट शोल्डर तक पेन आता है। हाँ मैडम, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन में आपकी ना पोस्टीरियर ऑस्टियोफाइट्स बने हुए हैं, जिसके कारण हो रहे हैं। टॉपिक से रिलेटेड कोई पूछता है? Recording in progress. अनामिका जायसवाल जी। Now I think हेलो। हाँ जी सर। अब आज का यहाँ पर इस अद्भुत वर्कशॉप का जो है समापन का समय आ गया है।
कुछ शब्द मैं आदरणीय खेतान साहब के विषय में कहना चाहता हूं कि अत्यधिक व्यस्तम आपका शेड्यूल रहता है, लेकिन आपके बीच पर आके ऐसे ऐसे गूढ़ विषयों को आपके सामने उन्होंने रखा है जो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेलो जी, am I audible? यस सर, ऑडिबल सर। आज जिन बिंदुओं पर आपने जो है अपना व्याख्यान दिया है, मित्रों, आपको हम अगले कुछ क्लासेस में उस पे स्पेसिफिक न्यूरोपैथी के पॉइंट बताएंगे और ये हमारे लिए जितना लाभप्रद है, और जब हम सब मिलकर इस पर इंटरेक्ट करेंगे एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट के माध्यम से, तो ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। मित्रों, आज आपने देखा होगा कि रीनल फेल्योर से लेकर लीवर की गंभीर बीमारियां, सर्कॉइड्स और डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द मिनरल्स एंड विटामिन्स के बारे में जो चर्चा की है, और कितना बड़ा उसका रोल है। मैलिग्नेंसी यानी जितने भी गंभीर रोग होते हैं, सब में एक कॉमन बात है कि न्यूरो उसमें इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही डॉक्टर खेतान साहब न्यूरो सर्जन हो, बट ही इज कॉमन टू ऑल पैथीज। he can understand the cardiomyopathy and also he can understand the vision of the renal failure. आज पेशेंट जो है, और लीवर तो और गुलेनबारी सिंड्रोम, जितनी बातें आपने बताई हैं, मैं समझता हूं कि आज तक जो 25 वर्षों में कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई है जिसमें न्यूरो का दखल ना हो। कोई कितना ही सुपर स्पेशलिस्ट हो, लेकिन डॉक्टर खेतान साहब इज द स्पेशलिस्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट। और आप जानते हैं कि हमने ट्राइपॉडिक कंसेप्ट में हमने न्यूरो हार्ट की बात की है, पूरी की पूरी हम उस पर एक पॉकेट बुक के रूप में आपके सामने रखने जा रहे हैं। और कनेक्टिविटी आपके जो पेरिफेरल नर्व हैं और ब्रेन से जो उसकी और क्रेनियल नर्व से, वेगस नर्व से जो आप उसकी चर्चा करते हैं, आज आपने देखा होगा कि पेरिसिस एंड पैरालिसिस ऑफ द इंटेस्टाइन, इसका क्या मतलब है कि जो पेरिफेरल नर्व है उसकी कनेक्टिविटी अगर प्रॉपर नहीं है तो आप लाख कोशिश करते रहिए, इवन एक्यूप्रेशर भी करते रहिए, देयर विल बी नो रिस्पांस। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है स्पाइन से कनेक्शन, स्पाइन का ट्रीटमेंट, स्पाइनल नर्व का ट्रीटमेंट और क्रेनियल नर्व में खास तौर से वेगस नर्व, और आपको जहां भी किसी भी हाथ में, किसी भी पैर में, जीभ में भारीपन नजर आता है, हाथ में भारीपन नजर आता है, दिस इज ड्यू टू द न्यूरोपैथी। आज का विषय, कोई ऐसा मेडिकल साइंस का कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जिसको आपने अछूता छोड़ा, कवर ना किया। जितने प्रकार के कैंसर हैं, लॉस ऑफ मसल्स हैं,
और डीके एंड डी जनरेशन, जिसको लेप्रोसी के रूप में, जो देखने में बड़े गंदे लगते हैं, जो पूरी बॉडी, जिसको सामाजिक एक बहुत बड़ी विपिक्षा समझते हैं, और उसका भी आपने उपचार बताया। भले ही उपचार नहीं तो कम से कम इटियोलॉजी तो बताइए। और हमारे हाथ में जो सॉफ्टवेयर है पूरे नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का, और इसको भी खेतान साहब ने सिद्ध किया है। कभी मौका होगा तो उसे भी ये जरूर बताएंगे। मित्रों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो खुद उनकी पहल पर, और इस बुधवार की क्लास को मैं सारा क्रेडिट उन्हीं को देता हूं, केमका जी ने जो प्रारंभ किया था, और बीच में जो अवक्षेप आया कोरोना काल में, पहले भी बंद हो चुकी थी, उसे नेशनल लेवल पे पुनर्जीवित करने और इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्टर खेतान साहब को मैं का आभार व्यक्त करता हूं। एक बात और कहना चाहूंगा कि आज हमारी संख्या 450 प्लस है। उन जैसे मनीषी और विद्वान को सुनने के लिए लोग बेचैन रहते हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी, और उनको सदैव सुनने के लिए बेचैन रहती। मैं भी आज यहाँ पर अपने संस्थान में आकर उनके सामने बैठकर इस ज्ञान को मैंने आस्मन किया है, एंड ही इज अवर वर्दी टीचर। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, आज अभी उन्हें यहीं पर नहीं, इसके बाद एक बहुत गूढ़ विषय पर पुनः एक लेक्चर के लिए उन्हें जाना है, लेकिन आप उनके प्रायोरिटी बॉक्स में, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये अगर इस बार हम ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस कर सके तो निश्चित रूप से खेतान साहब को स्टैंडिंग ओवेशन हम आप सबकी तरफ से होगा। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि उन्होंने, आपने लिम्स की पैरालिसिस तो देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन आज उन्होंने ऑर्गन की नॉन फंक्शनिंग पैरालिसिस बताया। आपने ये बात जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि रीनल फेल्योर में आपकी जो है, चाहे वेगस नर्व का रेमिफिकेशन हो, चाहे 3 ट्रैक बताए हैं, पेरिफेरल, इफरेंट और एफरेंट को 3 ट्रैक को उन्होंने बड़ा स्पेशलाइज तरीके से बड़ा बताया है कि 3 ट्रैक को आप देखना, समझने की कोशिश कीजिए। और बातों बातों में उन्होंने आयुर्वेद के ट्राइपॉडिक कंसेप्ट को आपके सामने रखा है। अगर इनिशियल स्टेज की न्यूरोपैथी अगर बात है, तो मेटाबॉलिक न्यूरोपैथी, जिसमें लीवर और रीनल और पैंक्रियाज और स्टमक की नॉन फंक्शनिंग, जिसको एक्टिवेट करने के लिए तमाम तरीके के मेडिसिन और न्यूरो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। मित्रों, आज दूसरी बात उन्होंने मेटाबॉलिट यानी पित्त को बताया, और तीसरी बात है, चाहे वो मैलिग्नेंसी हो, कैंसर, एनी टाइप ऑफ द कैंसर, या आपकी लेप्रोसी हो, या जितने प्रकार के ऐसे गंभीर रोग हैं, डिजेनरेटिव है, लीजन्स हैं, और जहां इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन भी इस लेवल का है, स्टेसिस नहीं, बिल्कुल डैमेज ऑफ द मसल्स, चाहे हार्ट की मसल्स का इन्फेक्शन हो या वेयर एवर इट में भी, वो एक कफ स्टेज है। तो आयुर्वेद के उन्होंने तीनों ट्राइपोडिक कंसेप्ट को, वात पित्त कफ को सबके सामने रखा है। मैं बारंबार आपका आभार व्यक्त करता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप कम से कम महीने में 1 से 2 अवश्य हमारे बीच में, और इसके बीच में जो आपने दिया है उसका हम जुगाली करने का पूरा प्रयास करेंगे, और उसके परिणाम पे आपके दस्तखत होंगे। यू आर दी सिग्नेचर ऑफ नेचुरोपैथी, और इस सिग्नेचर को हम आरबीआई के सबसे बड़े सिग्नेचर के ऊपर रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और डॉक्टर खेतान सर, आपके ज्ञानवर्धन लेक्चर के लिए, और
आप सभी पार्टिसिपेंट निश्चित रूप से इस ज्ञान का उपयोग करेंगे अपने प्रैक्टिस में। और आज पुस्तक परिचय श्रृंखला में ये परम सूक्ष्म अभिनव किताब है जो अपने आप में बहुत अद्भुत है, और इसका पहला प्रकाशन इस पुस्तक का जनवरी सन 2000 में यानी 21 साल पहले आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर द्वारा लिखित यह किताब है, जिसमें बहुत सारे सिद्धांतों की व्याख्या होमो हेट्रो से लेकर के और मैं इन्फेक्शन एक का। बात इसमें बीच में कहना चाह रहा हूँ जी जी। कि इस पुस्तक पे इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पद्मश्री के लिए रिकमेंड किया था, और इसमें पुलिस वेरिफिकेशन पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने मना किया था, क्योंकि प्रथम अधिकार हमारे मेंटर और हमारे प्रेरणा स्रोत खेमका साहब का था। और वो पत्र मैं चाहूंगा कि आप पूरे उसमें सर्कुलेट कर दीजिए, और वो उस पत्र की कॉपी मैं भेज दूंगा अनिल जी, जी राम के पास भी है। और अभी वो मुझे इत्तेफाक से पिछले साल जिन डीएम ने आलोक टंडन साहब ने रिकमेंड किया था, उन्हें कुछ ऐसी तकलीफ हुई, उन्होंने याद किया, और हम नोएडा में मौजूद थे, वो नोएडा के चेयरमैन और अथॉरिटी थे वहां पर। उन्होंने कहा कि अग्रवाल जी मेरे पास ये लोगों ने पूछा कि क्या अग्रवाल जी को पद्मश्री रिकमेंड हुआ था, तो उन्होंने कहा बिल्कुल रिकमेंड हुआ था। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पद्मश्री के हकदार हमारे डॉक्टर खेतान साहब हैं, और ये उनको मिलकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा इन्हीं शब्दों से और हमारे अपेक्स कमेटी के चेयरमैन शराब जी और हमारी अपेक्स कमेटी के सभी सदस्यों का, डब्ल्यूईसी के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको बारंबार, तो ये परम सूक्ष्म है, इसमें ऑल इन वन है, और इसी का सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो है, जिसमें इन्फेक्शन से लेकर डिजेनरेटिव मेटाबॉलिक और यहाँ तक कि कुछ ऐसे चीजें दी गई हैं जिसमें बेस्ड ऑन दी डॉक्टर वॉल्स फिजियोलॉजी एनाटॉमी बेस्ड है। क्योंकि हम लोगों को, लेमैन को, अगर किसी ने फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ने के लिए बाध्य किया है तो इस मेडिकल फ्रेटर्निटी ने, दैट वाज हेडेड बाय डॉक्टर वॉल एंड डॉक्टर जीसी अग्रवाल साहब। और अब उस नई कड़ी में सिद्धार्थ साहब के बाद जो है पूरा का पूरा चार्ज जो है डॉक्टर खेतान ने ले लिया है। मैं पुनः एक बार इस पुस्तक के आधार पर 3 चोटी जो है, परम सूक्ष्म 1, 2, 3 और उसके साथ साथ अति सूक्ष्म एक्यूप्रेशर पॉकेट बुक के रूप में है, जिसमें कलर के माध्यम से इन्फेक्शन और अन्य उसमें। मुझे आश्चर्य होता है कि जब केवल एक किताब थी और खेमका जी के प्रेरणा से वो आई थी, केस हिस्ट्री बेस्ड थी, ये असीम खजाना आप सबकी वजह से संभव हुआ है। और आपका ये सारा का सारा ये आंदोलन जो है रीच वन, टीच वन और ट्रीट वन का है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये परम सूक्ष्म अभिनव बुक, यह 3 वॉल्यूम है, इसके स्प्लिट किया हुआ है, और इसकी छोटी बुक है अति सूक्ष्म एक्यूप्रेशर। तो आप सभी जुड़े आज की इस क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी रिकॉर्डिंग और इस पुस्तक परिचय का डिटेल आपको कल मिल जाएगा, और इसकी आईडी आप सेव करके रखिएगा। और समय 5:30 बजे होता है, काफी लोग 6 बजे तक जुड़ते हैं, तो कोशिश करें कि 5:15 बजे तक आप सब क्लास से कनेक्ट हो जाएं, तो आपको पूरा ज्ञान इसका मिल सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।